Hello friends, welcome to CEC Gurukul Live Lectures. Dear friends, this is our another session on career counseling called Pratibha Samvardhan. Dear friends, today we have come up with another interesting topic, and the topic of discussion is Flourish to Nourish. Friends, you might be wondering what we are going to talk today. First of all, we would like to tell you all that your health is very, very important. Whatever you want to be in life, yes, you will be one day. But before that, you need to take care of yourself. You need to eat good. You need to take care of your fitness. You need to be mentally fit. So, friends, now you might have gathered what we are going to talk today. Friends, for this discussion, we have with us in our studios Mr. Siddharth, and Mr. Siddharth is himself a motivator, educator, an influencer, and a fitness professional in the sense that he is going to talk in detail how your fitness plays an important role in your life by having good food. So let's welcome our guest, Mr. Siddharth. Mr. Siddharth, welcome to the session. Hi Gitiva, and hi everyone. I want to first start with thanking the CEC team for letting me speak about a topic that I'm really passionate about. I have a lot of experiences that I've gathered over the years that I want to share with you, along with how I can help all of you improve your lives by improving your health. I would like to first start with giving a few examples that is very shocking to me. One of our young entrepreneurs, Nikhil Kamath, recently tweeted that he had suffered from a mild stroke at the age of 37. Now, probably that would be due to the stress that he is facing. And in today's generation, where kids are going through a lot of examination pressures, fear of failure, my aim today is to help everyone and make them aware of what they can do to solve this problem. Definitely, very true. Whatever we want to be in life, we become that particular person or particular profession we want to be in. Now, going back to the memory lanes, अगर बचपन की तरफ हम जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारी मम्मीज, हमारी mothers जो हैं बहुत struggle करती थी, so that we could have good food, because mother knows how important it is for child to have a balanced diet, a good diet, and 3 meals a day was very, very important. And apart from that, having milk as well as fruits was a part of the day. Now the things are changing. In the sense, now we have lots and lots of options to eat. And what is happening in today's scenario, that kids are spending more of their energies in eating the junk food. How it is hampering their lives, how bad it is for them. Yeah. So, I mean, if you look at pure statistics, the obesity rate in India is astonishing. I mean, if you look at it, there are about 30 million children who are obese in India. I mean, we are not even considering people who are overweight. We are talking about obese. 30 million obese children in India, about 20% of women in India are obese, and about 18% of men are obese. So the statistics are pretty high, and this is coming, the influence has increased because of liberalization that happened in 1991. It has boon and bane as well, in the sense that globalization brought about a lot of economic development. But if you look at it, it also brought about the fast food culture that is there in India. I mean, you look at children now pestering their parents to order pizzas. They want to eat burgers on a daily basis. They love instant noodles, and all these things at the end of the day are processed food. And my philosophy is this is what I quote from a very top renowned nutritionist. He says that the more the expiry date of a food is, the earlier your expiry date will be. So it is important to also read the food labels that are there behind the products and understand what is there and what is going into your body, because at the end of the day, your body is your temple, and you can only win in life if you keep yourself healthy. And if I give my personal experience, I mean, I grew up as a very, very skinny child. And I used to think, and along with my friends, I think a lot of people must have experienced this. They feel that they can eat anything and get away with them because let's take for an example, their weight is not increasing. But what they are not understanding is the damage that they are doing to their organs in the long process. For example, I was appearing for a very competitive exam which required you to take a medical test. And at the age of 19, I realized when that medical test took place, that my metrics, even though were not bad,
but for my age were not up to mark, and that is when I realized that I need to take actions to improve my life. And if I don't do it at this age where I can quickly improve my health, it will take me tenfold times to improve my health when I'm in my 40s and 50s. So it is important for children to take care of themselves from a very young age. Very true. Yeah. Now the question arises, Yeah. who is responsible for the junk food? The parents or the kids? Because now we have working parents. Both mother and father are working, and parents doesn't have time, you know, doesn't have time to cook food. ठीक है, बच्चे को कहा ये लो, काट दो और तुम ऑर्डर करो और खा लो, है ना? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, एंड व्हाट इज द वे आउट, व्हाट शुड बी डन? Yeah, so I feel it is both of them are at fault here, because parents at this age, once they are in their 40s and 50s and they realize the importance of health, should also try to inculcate into their children the same lifestyle that they have. I've heard a lot of cases where people have abused their bodies in their 20s and 30s and finally realize that they need to take some measures. I believe that these parents should also inculcate this lifestyle in children as well. And children themselves, like I said in my previous answer, right, that they should be more aware of what they're putting things into their body, and realize that processed food is not the way to go. I know in today's age, when people are too busy to focus on nutrition, when there's so much examination stress, so much there's a fear of failure, they should put away some time to educate themselves on it, and probably try to start by cooking food for themselves. This is what I feel. वो कहते हैं ना कि बचपन की कुछ गलतियां जो है ना ताउम्र आपके साथ चलती हैं, and after at a particular age you realize why you haven't taken care of yourself. काश उस वक्त खुद पर ध्यान दिया होता, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, तो हमें लगता है sky is all ours, कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ गलत नहीं हो सकता. As we were discussing कि किस तरीके से जब वो बच्चे जो आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं, है ना, 12th के बाद सीधा आप एग्जामिनेशन देते हैं, सीरियस एग्जामिनेशन देते हैं, एसएसबी क्लियर करते हैं, एंड देन यू गो इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, एंड दैट प्रोसेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. कितने ही बच्चे अपना एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद भी अनफिट हो जाते हैं फिजिकली. Why? Because they haven't taken care of themselves. So how important it is for all those who wish to be in the armed forces, or those who want to be into sports or want to be athlete, क्योंकि इन सभी फील्ड्स में जाने के लिए जहाँ पर भी आप फिजिकल वर्क करते हैं, है ना, वहां पर कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत ही टेंडर एज से. इनफैक्ट मैंने काफी जब मैंने भी एसएसपी के लिए अपीयर किया था, एंड मेरे फ्रेंड्स भी अपीयर करना चाहते थे, एंड लॉट ऑफ देम वेयर एक्चुअली यू कैन लुक एट देम एंड मेक आउट कि दे आर अनहेल्दी, बट दे वर लाइक देयर पोजीशन वाज कि अरे हम लोग एसएसबी क्लियर करने के बाद फिट हो ही जाएंगे. So that is the motto that they went with, and that is very obvious to all the instructors there that this guy or this girl is not serious about their health. So it is a life. I feel health is a lifelong commitment that you do to yourself, just like anything. I mean, you brush your teeth and आप सोचते नहीं हो 2 बार करने से पहले कि आप ब्रश क्यों कर रहे हो. मतलब सुबह उठ के ब्रश करना एक काफी नॉर्मल चीज है. वैसे ही आई बिलीव कि अपना हेल्थ का देखभाल करना भी एक हैबिट होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपने आप वेजिटेबल्स खा रहे हो तो काफी मतलब बोरिंग सा हो जाता है. यू कैन ऑलवेज मेक योर फूड इंटरेस्टिंग इन वेज दैट आर वे हेल्थियर. अब देखोगे लोग इसलिए नहीं खाते क्योंकि लोग के पास टाइम नहीं है कि हम लोग मतलब सैलड्स कैसे खाएंगे, ये कैसे इतना बोरिंग है. तो दैट इज व्हाट माय ओपिनियन इन दिस केस. एंड आप देखोगे कि स्ट्रेस का भी इफेक्ट जो अपने स्टूडेंट्स में है. अब कोटा राजस्थान में जो अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिनेरियो चल रहा है, वहां पर तो एवरी ईयर देयर यू कैन हियर केसेस, मतलब 15 से 20 लोग अपने आप को सुसाइड केसेस में मारे जाते हैं. तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि आप इमोशनली क्या बोलते हैं, इमोशनल स्ट्रेस ईटिंग. आप काफी स्ट्रेस हो तो आप खाते हो टू कॉम्पनसेट फॉर द फैक्ट दैट आप काफी स्ट्रेस हो. तो आप क्या खाते हो, आप शुगर फूड्स खाते हो जो विच आर हाई इन शुगर. दे स्पाइक योर ब्लड शुगर लेवल, आपका डोपामिन लेवल्स हाई जाता है. बट पीपल शुड रियलाइज कि ये काफी टेम्पररी चीज है. Things like cigarette and all this are very temporary. They give you temporary satisfaction, but in the long term, first of all, it is very obvious that it is harmful for health, and second, it doesn't solve anything in the long run. And इस सेगमेंट से हम लोग मेंटल हेल्थ की तरफ भी जा सकते हैं. आप देखोगे कि निखिल कामत के केस में भी मतलब वो एक फिटनेस फ्रीक है सॉर्ट ऑफ, बट स्टिल
he underwent a mild stroke, that was because he was first was his dad died a few months ago, so that was another case scenario. But uske alawa bhi the stress that he was having from this job is actually the main reason why he underwent that stroke. So it is also important to look at mental health and look at ways to solve both your physical and mental problems. That is very, very important because if we want to live long and we want to have a healthy life, then we need to take care of ourselves from the very beginning. Whether they are parents or the kids themselves, they need to understand. Though kids are at very tender age, but we need to inculcate that feeling in them that your health is very important and you need to eat good. कहते हैं ना कभी कभी सपने सिर्फ इस वजह से ढह जाते हैं क्योंकि हमने मेहनत नहीं की होती. मेहनत सिर्फ इसलिए नहीं की होती कि हमने पढ़ा नहीं होता या हमने तैयारी नहीं की होती, इसलिए ढह जाते हैं क्योंकि हमने प्रॉपर्ली अपने सपनों को स्ट्रक्चर नहीं किया होता कि भाई हमें अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, आगे चलकर दिक्कत हो जाती है क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहां बच्चे तैयारी करते हैं और एक तरीके का मेंटल स्ट्रेस है, चाहे वो फिर सिविल सर्विसेज के लिए हो या वो एक आईआईटी एग्जाम क्लियर करने से संबंधित हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे होते हैं और ऐसे में जब आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आप हेल्थ इश्यूज का शिकार बन जाते हैं. सही बोला, एकदम एग्री करता हूँ आपसे. और मतलब आगे के सेगमेंट में आपको बताऊंगा कि मतलब आपको तो अभी बता रहा हूँ कि क्यों हेल्थ में ध्यान देना है, पर आगे के सेगमेंट में बताऊंगा कि क्या तरीके हैं जिनसे आप अपने हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो. बट हेल्थ इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म. आई मीन किस लोगों के लिए हेल्थ होगा कि मैं अच्छे से वेट लिफ्ट कर पाऊँ, किसी के लिए होगा कि मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, वैसे कुछ लोग अपना हेल्थ को इंक्रीज करते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मैराथन भागता हूँ, उससे मेरा हेल्थ इंप्रूव होता है. सो देयर आर डिफरेंट टेम्पलेट्स दैट ईच पर्सन कैन इनकलकेट इन देयर लाइफ्स टू इंप्रूव देयर हेल्थ. तो देयर इज नो वन स्टॉप वे दैट आई कैन टेल यू, बट देयर आर साइंटिफिकली प्रूवन कुछ रिसर्चेस हैं एंड कुछ नए फिलोसफीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. बट उसके पहले आपका ओपिनियन क्या है इंडियन डाइट पे, कि जो इंडियन डाइट है एज कम्पेयर टू अदर डाइट्स, उसमें कुछ व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स दैट यू फील इन इंडियन डाइट? प्रोज एंड कॉन्स एज सच इफ यू वुड आस्क मी, तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले कि हम अपनी मील्स जो है ना वो प्रॉपर नहीं लेते हैं. खास तौर पर अगर आप प्रोफेशनल्स के बारे में बात करें, वी स्किप आवर मील्स, है ना, एंड वी हैव नो टाइम स्पेसिफिक. किसी का डिनर रात को 12 बजे या सुबह के 4 बजे भी होता है. इफ यू आर टेकिंग डिनर एट 12 एट नाइट, देन हाउ कुड यू थिंक ऑफ having early breakfast? Yeah, exactly. So for me, first the important thing is to have the proper meals at the proper time. अगर आप अपने टाइम को सेग्रीगेट कर लेते हैं, उसके बाद अपना एक डाइट चार्ट बना लेते हैं, then it has become easier for you, then it is easier for you to understand that how your body is responding to that. क्योंकि आपको अपनी बॉडी को खुद समझना होगा और अपनी बॉडी को समझने के लिए जरूरी है कि आप अपने लिए पहले एक चार्ट बनाए, एक डाइट प्लान बनाए कि आपने क्या कब कैसे खाना है. और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा इसके ऊपर कि मतलब इंडियन डाइट में जो मैंने नोटिस किया है, इट इज वेरी कार्बोहाइड्रेट फोकस. मतलब कि कार्बोहाइड्रेट वो चीज है जो आपको एनर्जी देता है, बट एट द एंड अगर आप वो कार्बोहाइड्रेट को यूज नहीं कर रहे हो तो आपके बॉडी में फैट स्टोर करे. ये कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है वो पहले जमाने में बहुत काम के आते थे जब लोग वेर इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज, दे यूज्ड टू डू मच मोर फिजिकल लेबर. आजकल के ज़माने में जो लोग अपने स्क्रीन के सामने बैठ के काम कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हैं, उसमें आपका प्रॉब्लम है कि आपका बॉडी वो फैट स्टोर करती है और अनहेल्दी होता रहता है. आपके बॉडी के ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होते रहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज होता रहता है. तो ये सब तो इसको फिक्स करने के लिए मैं बोलूँगा कि आपको अपना डाइट को थोड़ा प्रोटीन फोकस करना चाहिए. तो आपके चाहे प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले सकते हो, वे प्रोटीन वगैरह, या तो आप एग्स ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो अपने फूड में, सोया इंक्रीज कर सकते हो. फॉर वेजिटेरियंस सोया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. तो यू शुड लुक एट वेज टू बैलेंस योर डाइट, बिकॉज लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट एंड पीपल ऑटोमेटिकली अज्यूम जो घर पे खाना मिलता है वो बैलेंस डाइट है. बट दे शुड ऑल्सो लुक एट हाउ दे कैन इंक्रीज द प्रोटीन एंड इंक्रीज द, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका जो ग्रोथ है बॉडी का एट यंग एज विल ओनली हैपन इफ यू आर गिविंग इनफ प्रोटीन टू योर बॉडी ऑन अ डेली बेसिस. Very true. Very true. तो इसके आगे मैं आप फास्टिंग के बारे में बात करना चाहूँगा. फास्टिंग ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने 2-3 साल पहले चालू किया था, जब मैंने काफ़ी रिसर्च पढ़ा उसके ऊपर में. पहले मैंने चालू किया इंटरमिटेंट फास्टिंग से, विच इज़
आप 16 घंटे के लिए आप कुछ खाते नहीं हो, और 8 घंटे के विंडो में आपको जो हेल्दी फूड है वो खा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके 16 घंटे के लिए आपके बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, टाइम मिलेगा अपने बॉडी को रिप्लेनिश करने के लिए। तो मैं आपको फास्टिंग का फिलोसफी बता दूं कि इसमें एक्चुअली व्हाट गोज बिहाइंड इट। सो आजकल काफ़ी अर्ली एज में लोग डायबिटिक हो रहे हैं, प्री डायबिटिक हो रहे हैं, एंड लोग का शुगर लेवल बहुत हाई हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने बॉडी को टाइम नहीं दे रहे हो रेस्ट करने के लिए। क्या हो रहा है कि पहले ज़माने में जब हम लोग एक्चुअली काफ़ी बूढ़े हैं, आप देखोगे कि 2.5 मिलियन ईयर्स हो गए हम लोग हंटर एंड गैदरर्स होते थे। मतलब हम लोग शिकारी होते थे और मीट को पकड़ने जाते थे। उसके बाद 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर चालू हुआ, और पिछले 200 साल में हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे हम लोग अभी प्रोसेस फूड खाने लगे। तो इसमें डिफरेंस ये है कि हमारी बॉडी ने अडेप्ट नहीं किया कि उस मतलब बरसों साल पहले से जो से हमारा जो डाइट था अभी उसके हिसाब से आजकल की जो डाइट खाते हैं अडेप्ट नहीं किया। इसके वजह से क्या क्या होता है कि बॉडी रिकग्नाइज नहीं कर पाती कि आप अपने अपने अंदर क्या डाल रहे हो, और एसेंशियली आप बॉडी को हार्म करें। इन द सेंस अगर आप कुछ खाओगे नहीं 18 घंटे के लिए तो आपके बॉडी का इंसुलिन लेवल्स बहुत कम हो जाएगा। इसके वजह से बॉडी क्या करेगा, एक नया तरीके का एनर्जी यूज करेगा विच इज कॉल्ड कीटोन्स। नो कीटोन्स तब प्रोड्यूस कर आपका लिवर तब प्रोड्यूस करता है जब आपके बॉडी को कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता, कोई टाइम के कोई कैलोरीज नहीं मिलता। तो कीटोन्स लोग बोलते हैं कि इज मोर एफिशिएंट देन द फैट दैट इज स्टोर्ड इन योर बॉडी। यानी कीटोन्स आपका ब्रेन बहुत पसंद करता है। आप देखोगे कि ऐसे तो नहीं है कि पहले जब हंटर गैदरर्स को कोई एनिमल नहीं मिलता था कि वो अपने केव में जाके वहीं पर मतलब सड़ के मर जाते थे। द बॉडी हैज इवॉल्व्ड इन अ वे कि बॉडी सेज कि तुम्हें अभी कोई खाना नहीं मिले, तुम जाके शिकार अपना अगला शिकार पकड़ो। तो इन दिस वे अगर आपको अपने माइंड को और तेज करना है तो आपको अपने बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना है और थोड़ा कम खाना पड़ेगा। और इसके एक्चुअली बहुत सारे और बेनिफिट्स है जो आपको आगे बताऊंगा। आपका गीतिका, आपका क्या ओपिनियन है इसमें फास्टिंग में? फास्टिंग यस इट मेक्स अ बैलेंस, और उस बैलेंस के लिए जरूरी है जितना भी, फॉर एग्जांपल अगर हमने जंक खाया है या हमने कुछ हेल्दी नहीं खाया है तो इट बैलेंसेस यू। सो फास्टिंग वंस अ वीक इज इम्पोर्टेंट, आई फील सो। एंड आफ्टर फास्टिंग यू विल फील अ पॉजिटिव एनर्जी इन योर सेल्फ। आपको लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा फैमिश वाली फीलिंग नहीं आएगी, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आपको हंगर पैंग्स हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फील होगा, बट स्टिल यू विल फील देयर इज अ न्यू energy which is circulating inside you. In fact काफी लोग फास्टिंग एंड स्टार्विंग को कंफ्यूज कर देते हैं। स्टार्विंग तब होता है जब तुम्हें एक्चुअली में खाना नहीं मिल रहा और तुम खाने के ढूंढ रहे हो। फास्टिंग में ये है कि तुम्हारे पास खाना है बट तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम खाना नहीं चाहते हो। और मतलब फास्टिंग यूजुअली टेक्स प्लेस टिल अबाउट 7 days। उसके आगे थोड़ा रिकमेंडेड नहीं है। मैंने खुद एक हफ्ते के लिए फास्ट किया, मतलब एक हफ्ते के लिए मैंने कुछ खाना नहीं खाया, मैंने बस पानी पिया। और इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा गीतिका। एक मणिपुरी एक्टिविस्ट है इरोम शर्मिला करके। इन द 2000 शी वाज अगेंस्ट द एफ्स्पा एक्ट, ठीक है। एंड ड्यू टू हर शी डिडंट लाइक दैट एक्ट, एंड फॉर इन रिपेलिंग शी स्टार्टेड a hunger strike that lasted for 16 years. So essentially she didn't eat anything for 16 years and she is still fine, she is still fit, she has no problems. Of course उसको बीच बीच में थोड़ा liquid diet देना पड़ा, but the point I'm trying to make is कि मतलब लोग 16 साल को ना खाने के बाद भी आराम से fit and fine है। तो हर 2 घंटे में कुछ खाना आपके बॉडी रिकग्नाइज नहीं कर पाती आप क्या कर रहे हो अपने बॉडी को और जितना डैमेज आप कर रहे हो। तो हाँ, तो ये फास्टिंग के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे काफ़ी लोग अभी एजिंग से काफ़ी डरते हैं कि मतलब मेरे को और बूढ़ा नहीं होना। बट अब अगर आप 18 घंटे के लिए कुछ खाते नहीं हो तो आपके बॉडी में एक प्रोसेस है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी यानी कि आपकी बॉडी खुद जो बैड सेल्स है आपकी बॉडी में वो खुद रिप्लेनिश होने लग जाते हैं। तो और लोग बोलते हैं कि ऑटोफेजी से कैंसर रेट्स हैव डिक्लाइन इफ पीपल हु फास्ट रेगुलरली, उनके बेस में ऑटोफेजी की वजह से कैंसर हैज डिक्लाइन बाय 70%। तो दैट इज अ ह्यूज स्टैटिस्टिक दैट पीपल शुड कंसिडर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आजकल कैंसर रेट्स आर एट ऑल टाइम हाई। तो ऑटोफेजी भी। देन एक और चीज़ है ग्रोथ हार्मोन करके। ग्रोथ हार्मोन का एक शॉट अगर आप लोगे बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में तो आपको $400 लगेंगे, एंड उससे और आपको फ्री में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज मिल रहा है अगर आप कुछ नहीं खाओगे थोड़ी देर के लिए। अगर ये ग्रोथ हार्मोन आपका अराउंड 24 आवर्स से चालू होने लग जाता है।
तो ग्रोथ हार्मोन का बेनिफिट्स दे सकते हो। फिर एक और चीज़ है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बहुत एक्सपेंसिव है एंड बाहर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लगते हैं फॉर पीपल टू इंजेक्ट स्टेम सेल्स इन योर बॉडी, एंड वो भी अच्छे से एक्ट नहीं करता आपके बॉडी के साथ। आप नेचुरली खुद स्टेम सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हो अगर आप 72 आवर्स के लिए खाना नहीं खाते हो। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो फास्टिंग के साथ आते हैं, विच आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड। ऑफकोर्स मैं कोई एक्सपर्ट नहीं उसमें, दैट्स वाई आई वुड लाइक पीपल टू डू द रिसर्च ऑन देयर ओन। मैंने पर्सनली एक हफ्ते के लिए किया और मैंने जो बेनिफिट्स देखे हैं, मेरा एनर्जी लेवल्स, माई मेंटल क्लैरिटी दैट आई हैड गॉन थ्रू ड्यूरिंग दैट टाइम वाज फिनोमिनल. Now, because we are stressing more on how important it is to have good food specifically for the students, the kids, or the youth who are pursuing their dreams or who are fighting for their dreams. Now, for them, along with the diet, how important it is for them to have a good fitness plan too. Because your diet as well as your fitness plan makes a difference. Exactly, but I would like to correct that a bit. I feel that your health mainly depends on, it is 75% your diet and 25% exercise, right? If you don't feed your body good food, then exercising will. I have heard a lot of people. I have noticed a lot of people who eat a lot of junk food and at the end they go to exercise and then they say कि मेरा weight lose क्यों नहीं हो रहा. तो आपका बॉडी, अगर आप अच्छा फूड नहीं दोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा नहीं होगा. लाइक इफ योर मेटाबॉलिज्म रेट इज एट इट्स पीक, आप जितना भी, जैसे मैं स्किनी था, मैंने जितना भी खाया मेरा वेट इंक्रीज नहीं हुआ. इन दैट केस यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर इंक्रीजिंग योर मेटाबॉलिक रेट and that happens through better food. Exercise, obviously each person has different template, like I mentioned कि कुछ लोग को स्पोर्ट्स पसंद है, कुछ लोग को रनिंग पसंद है, कुछ लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं. काफी सारे केसेस जिसमें 80 year olds are running marathons are able to do it. Their bodies, I've heard a lot of cases where people have said that their bodies have peaked at the age of 40 and 50s and not in their 20s. So it is a never ending thing, and yeah, exactly, that is what I'm coming to. Yes, we are very true here. As you have seen Milind Soman's mother, she is running at such a age. I mean, she might be 80 plus, and she runs along with Milind Soman. This might be because she has always had a healthy food and she might be following that particular thing. एक किसी दिन अगर आप ये सोचने लगेंगे उम्र के किसी पड़ाव पर आकर, फॉर एग्जाम्पल आप 40 से 50 के हो गए, चलिए आज से हेल्दी डाइट शुरू करते हैं, दैट विल नॉट मेक द डिफरेंस. बट अगर आपने किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया है फ्रॉम द वेरी यंग एज, दैट विल मेक द डिफरेंस टिल द एंड. Exactly. So how you make difference in your life is all how you take decisions in your life, how you plan your life, and उसमें आपका फिटनेस और आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है दोनों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. नाउ व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द स्टूडेंट्स, दोज हु आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग? क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि ओबेसिटी जो है वो सिर्फ आपको आपकी ईटिंग हैबिट से नहीं होता है, कभी कभी वो आपकी फैमिली, आपका बोलते हैं हिस्ट्री, हेरिडिटी आपके साथ चलता है. What those kids can do so that they could have a healthy life as well as they could have a better future. सो इसमें एक्चुअली में ओबेसिटी का ये भी है कि उन लोगों में विल पावर नहीं है कि I want to improve my fitness. So it all comes back to like your mental health as well. So mental health is a big aspect of how you can tackle obesity. In my case, I mean, music was one of the things that I got into to improve my mental health, to improve my stress during all my periods when I was a child, in all the pressures that I had to face. I remember I come from a background which has no musical, they have no musical background. I picked it up, I did it, and the enjoyment of getting into it and learning something new in itself helped me through a lot of tough times. And I would recommend it must not be only music. लोग कोई भी हॉबी पकड़ सकते जो जिनके अंदर वो पैशनेट है. जब तुम किसी का पैशनेट हो जाते हो, तुम तुम्हारा एकदम फोकस माइंड रहता है, तुम एकदम फ्लो स्टेट में आते हो, और आपको वो कुछ घंटों के लिए जब आप वो हॉबी कर रहे हो, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं करता, एंड बाय द एंड दैट यू कंप्लीट दैट एक्टिविटी, यू आर रिप्लेनिश, यू आर ready to conquer the world and ready to ace your exams as well. Yes, that is important to find out a way. वो एक तरीका आपको ढूंढना होगा जिसकी मदद से, चाहे फिर मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, उससे आप कॉम्बैट कर सके, उससे आप लड़ सके. So we always need to find a way. So dear friends, we believe that you might have gathered lots of information, a motivational information through this talk, and we are going to upload this lecture on YouTube for you very soon. So keep watching us and keep writing us. Thank you so much.